जो थे उन्होंने तो देखा था, जो नहीं थे उन्हें सुनाया गया। कहानी सबको पता है, लेकिन इस कहानी के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैं कहूँ एंगल्स हैं जो शायद नहीं पता। कहानी सिर्फ ज़मीनी नहीं थी, आसमानी भी थी। तो उसी आसमानी कहानी को सुनाते हुए आए हैं लेकर ऑपरेशन सफ़ेद सागर कुछ लोग मेरे साथ हैं। वेलकम, वेलकम टू बिग एफएम। Thank you. Thank you very much. सो ये बताइए मुझे, जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो कितना आपको पता था? जैसे मैंने कहा काफ़ी कुछ पता था, और कितना नहीं पता था अबाउट दैट वॉर? जी भी? इतने डिटेल में तो नहीं पता नहीं। था, बिल्कुल नहीं पता था। जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो इतने डिटेल में तो बिल्कुल नहीं पता था। बहुत डिटेल में, इतना डिटेल है कि आपको इस ऑपरेशन से, इस वॉर से, कारगिल वॉर से 10 साल पहले तक की भी स्कीमिंग जो है वो पता लग जाती है उसको देख के। तो आई थिंक इतनी डिटेल में नहीं पता था, और काफ़ी हिला देने वाले डिटेल्स थे। जो आप नहीं बताओगे ऑफ कोर्स, ताकि लोग शो देखें। देखिए ना, शो देखिए। 7 शो तारीख आ देखें, गई ना, या उसका मजा ही वो है जो मुझे या। पढ़ के आया था मजा। मैं आपको वो मजा बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो देखने को मिलेगा। यस बिल्कुल। आप समझ रहे हो? जी, सो आई थिंक क्या 7 तारीख आ गई। आ ही गई बस। मेरा यूनिवर्सिटी का दौर था। आई वाज वी वर वेरी, मैं वाकिफ था स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के बारे में कि वो शहीद हुए थे। एंड क्योंकि उस टाइम सौरभ कालिया का भी नाम हम सब जानते थे, सो दैट वाज अ टाइम व्हेन it made us very angry and we didn't know what to do with that anger. But as that, and since that time I'm a history buff, so I've studied a lot about different military operations, this and that. And still, when I read the script of Safed Sagar, I learned very new things. Because it was straight from the Air Force's mouth, and it was about their own. And it is, उस time TV coverage में first war था हमारा, Kargil war. So we were aware of that. But lot of things, unlike with the rest of the armed forces, with the Air Force, it takes much longer for things to get debriefed and become okay to share with the, the public domain. And so the other thing is, a lot of the things that happen in the sky, only the Air Force knows about. It's not the other way around. Like you can't have a correspondent in another plane saying, यहाँ पे ये हो रहा है. You know, Yeah. as simple as that. There's no eyes in the sky. Yeah. So the only people who knew are the people who are bringing you this story. It is with their permission, it is their experience, and I would like to say with their integrity. कि ये, it's not a story that's being told for any wrong reasons. It's being recollected and relived and told for the first time with absolute honesty and integrity. And this is not a, I know the Kargil war was not a very long war. It was not a long stretched war in terms of actual warfare. और उसमें एयरफोर्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम लोगों को पता है. एक्चुअली एंड अनफॉर्चुनेटली, नो ऑफेंस, बट जिन्होंने बताने की कोशिश भी की, अब जैसे मैं नाम ही लूँ बॉर्डर में, मुझे बस इतना पता है कि जयकिश राव बार बार कह रहे सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, लेकिन रात भर में उन्होंने क्या किया और क्या सुबह किया वो हमें देखने को नहीं मिला. और वो शायद उस वॉर मतलब लाइक, and there are many things, Rani. One is, how will you show it even till today? In India, nobody has done technically what Oni Sen and Setu sir, our cameraman, have done. Nobody has done this before. Where we are trying to show, a pilot, a fighter pilot, alone in a cockpit. So we are playing Golden Arrows. Golden Arrows are alone, unarmed, unafraid. अकेले होते हैं वहाँ पे. There's nobody to your left, nobody to your right, and it's a solo mission almost always, right? So for us to be brought into that world and to hear it with such detail, and today with the technology and the kind of investment that Netflix has backed this project with, and the kind of resources that the Air Force has given this team to be as accurate and authentic as possible. So I think it happened in the right way. So, and what I read from the script, I think we are the first audience of this show. Yeah. And I was completely blown away. Because for me, it's a human relationship drama. It's a human interest story. Every drama is a No, human more so this, because if you don't know the person on the ground, yeah, you're not going to be able to understand what they're doing in the sky. I agree. So we need to know the mind of the person who is in that cockpit. That's what Operation Safed Sagar does. It goes one step further, I would say. It also goes into their families, their homes, their night sleep, their morning rituals, their superstitions, their friendships, their rivalries. It goes into all of those things. I can feel your investment. No, we've also been doing it for, we've been doing it for 2 years now. And it's a lot of time, and we've been very, very blessed to meet some people who've
I wouldn't say change the way we think, but reinforce the way we think in very special ways. But I'm sure they'll have their versions of that as well to tell you. एब्सोल्युटली ना, मैं आऊँगी, आप दोनों पर आऊँगी, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा कि जितनी भी आर्मी वाली फ़िल्में बनती हैं, या मैं कहूँ आर्म फोर्सेस पे फ़िल्में बनती हैं, उसमें जो एयरफोर्स का एंगल होता है वो कम दिखाया जाता है। हालाँकि जिमी सर ये नहीं मानेंगे, वैसे कांग्रेचुलेशंस सर, आपकी पहला ऐसा किरदार, उसको आज पूरे 21 साल हो गए, यहाँ आज ही रिलीज़ हुई थी, 2005 wow. 29 Shujita जुलाई। sir, wow, what a film. एंड इन्होंने अभी तक जितनी भी फ़िल्में की, उसमें से सबसे ज़्यादा आपने एयरफोर्स ऑफिसर का ही कैरेक्टर ज़्यादा प्ले किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने आर्मी और आर्मी भी किया है, लेकिन एयरफोर्स के कैरेक्टर्स आपने ज़्यादा, ऑफिसर के कैरेक्टर आपने ज़्यादा प्ले किए हैं। सो 25 साल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बात है. क्या लगता है आपको उस जमाने की फिल्म मेकिंग, शुजीत सरकार से, हालांकि उनकी पहली फिल्म थी वो, और आज आप एक नेटफ्लिक्स के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग जब इस तरह के टॉपिक्स, कहानी होती है जिसमें सिर्फ मेहनत नहीं लग रही है, बहुत सारी चीजें और लग रही है जो एक नॉर्मल फिल्म में शायद उसकी जरूरत ना हो, दोज एक्सपर्टीज, दोज स्पेशलिटीज, उसमें कितनी समझ बढ़ी है? मेरे हिसाब से आई थिंक व्हेन यू स्टेप आउट टू मेक समथिंग लाइक ऑपरेशन सफ़ेद सागर, इसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई पूरी कहानी बता भी दे कि भाई इस तरीके से सारा कुछ हुआ था, उसको एग्जीक्यूट करना आसान नहीं होता है। सो आई थिंक इसका नसीब यही था कि इस टाइम पे ये आएगी 27 साल बाद, जब वो टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी कि हम वो कर सकेंगे। और जैसे हमारे डायरेक्टर अभी कुछ टाइम पहले बोल रहे थे कि सबसे अजीब बात ये थी उनके लिए कि उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाली इस तरीके की कहानियों में ये एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगी ये कहानी। Very nice. आप समझ रहे हैं, क्योंकि जी, इनके जी। पास कोई रेफरेंस पॉइंट था जी, नहीं, बिल्कुल। बिकॉज वो उस टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैंने खुद एयरफोर्स की फिल्में की हैं। हम लोग जब कॉकपिट के सीक्वेंसेस करते थे तो वो 3-4 लोग नीचे से ऐसे ऐसे करके हिला रहे होते थे, तो आपको वो फील आती थी कि ये वो है। हाँ, वही मैं पूछना बट चाहती कि ये आपने क्या की है ऐसी इसमें, फिल्में? ये जो टेक्नोलॉजी इस बार लेके आए हैं उसके अंदर वो सिमुलेटर फील के अलावा एक हाइड्रोलिक सस्पेंशन के साथ फिर कंप्यूटर से प्रोग्राम किया हुआ था इन लोगों ने पूरा सीन, और उसके अलावा पूरी लाइटिंग हमारे कैमरामैन ने मैच की हुई थी कि जब आप अगर इस तरफ को घूमेंगे तो ऑब्वियसली सन का एंगल जो है वो, जो पहले लोग हाथ से ऐसे लेके जाया करते थे, आप समझ रहे हैं? Semicircle trolleys Wow. होते थे, the light will move और to Really? give you तो the वैसे cast होगा। of shadow. कोई हाँ. पत्ते हिलाने वाला भी होता था। Wow. जी, तो अभी वो सारा कुछ मैच किया गया था, ये भी कुछ नहीं है। द प्रोग्रामिंग वाज डन इन सच अ वे दैट ये डे सीक्वेंसेस अभी इतने थे, वी कंप्लीटेड देम, नाउ द नाइट वंस। तो नाइट के हिसाब से ऑन द कंप्यूटर, बिकॉज वो 1 महीना लगा के उन्होंने सारा ऑलरेडी लाइट अप किया हुआ था, सब कुछ था, तो विद जस्ट फ्यू बटन्स they could change the lighting to night lighting. But the problem was, us actors, when we went inside for each sequence, it had to be programmed. So The अब whole ये scene is programmed. so एक बार में Trying हमें to करना understand. होता था। हाँ, कैमरे 2, 3, 4 जितने भी लगे होते थे, अगर हम बैठे हैं, अगर तो सिर्फ नॉर्मल फ्लोटिंग सीक्वेंस है तो वो कॉकपिट फ्लोट करती थी ऐसे ऐसे करके, सो दैट इट गिव्स यू दैट फील दैट यू, बिकॉज जब आप flying. एयर में होते हैं हम्म, आप ऐसे नहीं जा रहे होते हैं, हम्म, जितनी भी स्पीड से आप जा रहे हो हल्का सा वो Bounce फ्लोटी होता है। फील जो है वो रहती है, बिकॉज ऑफ द the गैप्स इन wind, द एयर। yeah, yeah. The currents, yeah. अब दूसरी चीज़ ये थी कि वो सीन के अंदर आप बैठ गए, अगर मेरे सीन के अंदर ये है कि मैं फ्लाई कर रहा हूँ, ओके नाउ बैंकिंग लेफ्ट, सो वो प्रोग्राम था पहले से, उसने लेफ्ट में घूम जाना है लाइक अ फ्लाइट। हम्म, सो नाउ आई हैव टू मैनूवर माय एक्शंस टू In मैच sync- विद in दैट, sync with the cockpit. Okay. In time. एंड दैट इज नॉट जस्ट कि अच्छा ये एक्शन हो गया कट, वो पूरा सीन अगर 3 पेज का 4 पेज का वो सीन है और उसमें 4 पायलट्स हैं और सबके सेपरेटली शूट हो रहे हैं, तो हर इंसान को उसकी पूरी रिहर्सल करके उसको मैच करना, उसका सारा कुछ करना, एंड द होल थिंग वुड बी शॉट। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग yeah. It's like a very delicate dance. वे Yeah. टू डू इट, बट ये Very टेक्नोलॉजी intricate पहले yeah. हाँ. या ये टेक्नोलॉजी पहले अवेलेबल नहीं थी। और अगर हम सही टाइम पे बैंक नहीं करेंगे तो सर पे लगता था, Hmm. Okay. because the vehicles moving. हाँ. Wow.
तो चलिए, मतलब आपने वो डिफरेंस समझा क्योंकि आपने पहले भी ऐसी फिल्में की है, अब ऐसे वो लोग जो टेक्नोलॉजी में ही आए हैं, मतलब हम तुम्हारे सब पता है। आपसे पूछते कि आप दोनों से मेरा ये सवाल होगा कि कितने वाव मोमेंट्स थे? काम तो पहले भी किया है आपने, लेकिन इस प्रोजेक्ट को करते हुए वो वाव मोमेंट्स कौन से थे? कि अच्छा ऐसे भी बनता है, अच्छा ऐसे भी होता है, कुछ था ऐसा? जी, मतलब ये तो बहुत ही डिफरेंट है सब बाकी सबसे, क्योंकि हम्म, इसमें सबसे पहली चीज़ कि एयरफोर्स का सपोर्ट है। इंडियन एयरफोर्स का हमें शुरू से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो एयरफोर्स स्टेशन में ही एंट्री होना एज अ सिविलियन, वो बहुत बड़ी सौभाग्य की Yeah. बात है। एंड आसपास आप मिक्स देख रहे हो। तो वाव मोमेंट्स पे सबसे ज़्यादा तो मुझे ये याद आ रहा है कि जैसे आप कोई भी सेट पे शूट करते हो तो आप कहते हो कि अरे वो कार राइट करो, कार लेफ्ट करो, बैकग्राउंड में। यहाँ पर हम हेलीकॉप्टर को ला लेते हैं, हेलीकॉप्टर राइट करो, हेलीकॉप्टर लेफ्ट करो। हम और एक हेलीकॉप्टर राइट पायलट लेफ्ट करेंगे। एक पायलट था जो हेलीकॉप्टर भी आकर राइट लेफ्ट कर रहा है, वो लाइक सो we got that support, and there were multiple wow moments. And as sir also said, they've explained the cockpit sequence. जब वो सेट पे गया, the entire setup was like क्रोमा में था पूरा। जब जैसे हम एवेंजर्स और स्पाइडरमैन और ये सारी फिल्मों के जब हम देखते हैं BTS एंड द मेकिंग ऑफ दोज फिल्म्स, मुझे लगा कि मैं उस सेट पे आ गया हूँ। एंड हाइड्रोलिक वो एम्स्टरडेम से आया था, जो कॉकपिट का हाइड्रोलिक आया था, उसमें भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी हमारी टीम को, क्योंकि बीच में कहीं खो गया था वो रास्ते में, कोई प्लेन में कुछ चेंज हो गया था, एंड वो भी डिले हो गया था वहाँ तक आते आते। सो मुझे याद है कि कोई तो कह रहा था सर में कॉकपिट घूम गया कॉकपिट रास्ते में वो प्लेन में। सो ऑल्सो सो फनी टू हियर दैट, बट हाँ बहुत चैलेंजेस ऐसे आए हमें शूट पे। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि हाइड्रोलिक्स और सब कुछ प्रोग्राम्ड है। मतलब ऑफ कोर्स इन टेक्नोलॉजी ही पैदा हुए, बट ऐसी टेक्नोलॉजी मैंने भी कभी देखी नहीं थी पहले, कि एवरीथिंग इज सो ऑर्गेनाइज्ड, लाइक एंटायर सीन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोग्राम्ड विद लाइट्स एंड एवरीथिंग। So yeah, thanks to Netflix for that kind of investment and Matchbox Shots and everyone, कि हमें वो मौका मिला है कि we're not bound by certain things कि हम इतना ही कर सकते। We had that leeway to make things beautiful. Very nice. मैम मेरे लिए तो 2 साल में W के बाद OWWW ऐसा है। वाह! बताओ मुझे तुम। मतलब क्या ही बताऊँ। बट यही जो ये कह रहे हैं, हम तारुक और अभय एक शॉट शूट कर रहे थे जहाँ पे एक वो मिग लेके जा रहे थे, मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि तारुक का मन किया, उसने बोला देखा वो हो रहा है ऐसे, तो उसने बोला सर एक मिग पीछे आ सकता है? उसने बोला हाँ डाल दो। आप मैम इतनी लिबर्टी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिग आप जब जाएंगे एयरफोर्स स्टेशन पे, इतने उनके लिए इट इज़ गिवन सो मच रिस्पेक्ट। मैंने गलती से कुछ कह दिया था अभी एक प्रीवियस इंटरव्यू में वहाँ पे उस जगह पे कि ये मिग्स यहाँ पे पड़े हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे नहीं पता था ये। उन्होंने बोला कि मिग्स आप रखें भी कह सकते हैं। मैंने बोला कि ये दैट्स हाउ दे लुक एट इट। और ये मेरी गलती है, मेरी लैंग्वेज की गलती है कि मुझे नहीं पता था, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। But I'm like, that's the respect that they give. And I'm still learning. So I'm saying that 2 years later, We all are learning. 2 years later, I'm still like, wow, like this is like, every time you go to an Air Force station, you're just taking it in. So it's too many things to like sit and be like, कि क्या मेरे लिए हुआ है, But I hope But it's young a big people one. watch this and get They their will. wow moments Yeah. and want to Yeah. do what these guys are Yeah. showing them on screen. That will be really huge. ऐसे प्रोजेक्ट्स कम मिलते हैं जिनकी कहानियां आप हमेशा अपने साथ रखते हो। तो आई एम श्योर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा आपके लिए। अब थोड़ा सा आपके बारे में बात करते हैं। तो मेरी कुछ सुनी सुनाई बातें आप लोगों के बारे में। सो जिमी, आप आर्मी स्कूल से पास आउट हैं और मैंने सुना है कि आप अपने स्कूल के बैग में एक बैट और बॉल हमेशा रखते थे। इज इट? ये कुछ बॉक्सिंग भी बहुत, की है वो आपने? क्या मतलब वो कॉकटेल बना दिया अपने कहानी का। वही मैंने कहा, सुनी सुनाई मैं मैंने एक पहले पब्लिक स्कूल में पढ़ता था okay. और बैट और बॉल मैं हमेशा अपनी गाड़ी में रखता था जब से मैंने फिल्में करनी शुरू की हैं। ओके। तो हम लोग के टाइम में बड़ी अच्छी बात है, वो मोबाइल फ़ोन ऐसे कुछ वो नहीं हुआ करते, नॉर्मल वाले होते थे, बस उठा जिसमें के हम बात लोग स्नेक करने वाला के गेम लिए। खेलते जी, मुझे तो लगता है उस टाइम पे स्नेक वाली गेम भी नहीं आई थी। Cordless phone का जमाना है यार, even in school and college. Come on. नहीं, हम फिल्मों की बात वो कर फिल्म की बात है, sorry, तो sorry. हम लोग सेट्स पे एक माहौल होता था, एटलीस्ट मेरी तो सारी फिल्मों में होता था कि लंच ब्रेक राइट वाज लाइक कि आपने या तो लंच से पहले या लंच के बाद हम लोग क्रिकेट अच्छा। खेला करते थे सेट पे बाहर। और जब बीच में लाइटिंग चेंज हो रही होती थी
उस टाइम पे भी एक अच्छा खासा टाइम मिला करता था, तो हम लोग बैट बॉल बहुत काम आता था, तो वो 2-3 कहानियां अलग अलग वो मिला के रायता बना दिया लोगों ने। आपके स्कूल में बैग में था क्या फिर? बताइए स्कूल के हमारे बैग में क्या था? हमारे स्कूल में बैग्स नहीं हुआ करते थे यार, मैं रेजिडेंशियल स्कूल अरे से था, हॉस्टलर ना। ओके। तो हॉस्टल में था, तो हमारा एक हॉस्टल होता था और एक हमारा क्लासरूम होता था जिसके अंदर आपकी डेस्क होती है और डेस्क के अंदर आपकी किताबें ऑलरेडी होती हैं, ओके। तो वो माहौल भी बड़ा आर्मी टाइप का होता है। लेकिन ये भी स्टोरी अच्छी थी। ओके, सिद्धार्थ, क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अगर लोग पसंद ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई जानवर पसंद ना करे, स्पेशली डॉग, तो आपको फ़र्क पड़ता हाँ, मैं रो दूंगा यार। है ना? हाँ। मैंने बड़ा प्यारा सा एक वीडियो देखा था, आप एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, वहाँ एक स्ट्रे डॉग था। मेरा पूरा फीड इन्हीं से भरा पड़ा है। हाँ, मेरा भी। I have very Cats, very dogs. few humans are in my feed. Exactly. Animals. And yeah. also, I was 14 years old when I rescued my first animal, my first dog. Okay. All of our dogs have been rescues. Mm. My first puppy, she lived to be 18 years old. She was my mother's doggy. Then my son he was 18 and a half when he passed. And so he was also rescued from the streets. Now my baby is, she's 14 years old and she behaves like a 6-month-old. But हाँ, उसका है भी बहुत है। Sweet. हाँ। तो अद्दू भी वैसे ही है, तो हमारे पास 3 शहरों में घर हैं और हर घर में बहुत सारे How बच्चे हैं ऐसे। sweet. हाँ। How sweet. हाँ जी। यार, आप दोनों अपने बारे में कुछ बता दो जो आपको लगता है कि लोगों को नहीं पता। वैसे तो सोशल मीडिया पर सब कुछ है, बट फिर भी कुछ तो। कि जैसे हमारे स्कूल बैग में ना एल्यूमिनियम फॉयल से हम वो बॉल बनाते बॉल थे। बनाते थे, हाँ। तो हम ब्रेक्स में वही खेलते थे, एल्यूमिनियम फॉयल से बॉल बनाकर, और नोटबुक से क्रिकेट खेलते थे। चलो, हर जनरेशन के बच्चों ने ये किया है, ये हम सब ने किया है। एक बार पीटी टीचर को लग भी गया था। ओह, वो तो जानबूझ के मारा था तुमने। नहीं पता है मुझे। कुछ भी बता दो अपने बारे में, एनीथिंग That nobody else इंटरेस्टिंग, knows. जो मैं बोलूं कि हाँ मैं जानती हूँ, अर्नब को जानती हूँ मैं। मैम समय बताएगा अब तो, मतलब अभी तो मैं आया हूँ यहाँ पे और मैं अच्छा हाँ, बहुत समय टाइम का पे शो आया है अभी नेटफ्लिक्स पे। हूँ। बिल्कुल। इनवाइट आया है, इसे लगता है। मैम धीरे धीरे पता चलने दो अपने आप, अभी तो मैं आया ही हूँ यहाँ पे और मैं बहुत हम्म। लंबे टाइम तक रहूँगा, तो टाइम विल टेल। मैम इसकी एक नहीं, नहीं। खासी बात बताओ, वी ऑल हैव दिस थिंग जी। कि ये बिना कुछ करे बहुत अच्छा पायलट दिखता है। दिख उसका वो मेथड भी आप कह सकते हो, लेकिन वो बस खड़ा है फ्रेम में, हम लोग सब उसको देख, सिर्फ तू फाइटर पायलट क्यों लग रहा है? बट ही इज वेरी ऐसे स्पेशल लाइक बिल्कुल दैट। ऐसे ही खड़ा जस्ट रहता है। वो ऐसे उसका है, ट्रेलर में भी एक शॉट है, उसके लिए हवा आएगी, कुछ तो हो जाता है उसके साथ। एक बार वहाँ पे हिलेगा, बस हवा गोफे ऐसे रहेगा वो। लाइंस। वो डायलॉग भी ऐसे बोलता है जैसे वो सच में पायलट है। हम्म। ऊपर तो ये खतरा ही खतरा है। पायलट जैसे बात करता है वो। चलो यार, आप लोग यंग हो, ये कॉन्फिडेंस, ये उम्मीद, ये सपना बनाए रखो। हम लोग अपना हम्बलनेस, हम भी यंग हैं। Why are you selling all of us under the bus now? हम लोग मैंने ऐसे रानी, बोला come था, on, हम रानी, लोग। we have long way to go. We are. Yes. Yes. अभी जवानी अभी छानी तो बाकी है। जवानी छानी बाकी है, यस। सो थैंक यू सो मच। मेरा एक लास्ट सवाल है, क्योंकि 7 अगस्त को ये ऑपरेशन सफेद आ रहा है और 15 अगस्त आ रही है, तो भारत को लेकर अगर मैं सपना आपसे पूछूं, 80 साल के हमारा भारत जो है वो 80 साल का होने वाला है। जब 100 साल पूरे होंगे भारत को, आप उसमें एक बड़ा चेंज क्या देखना चाहते हैं? मेरे लिए तो होगा कि हम अंदर आपस में जो लड़ते रहते हैं ये बंद कर दें, क्योंकि दुनिया तमाशा देखती है आप में। तो आई थिंक ये चीज़ बंद करनी चाहिए, क्योंकि लोग फिर फायदा उठाते हैं आपका। ओके, सिद्धार्थ, आप? I think कम नफरत ज्यादा प्यार अच्छा रहेगा। दोनों तरफ से। हाँ, कम नफरत ज्यादा प्यार लोगों में, बस एक दूसरे के प्रति। और आई थिंक अगर हम लोग इंसानियत पे ज्यादा ध्यान दें, जी। जो सबके सामने दिखता है और जो चीजें हमें दिखती नहीं, अगर उनके ऊपर हम ज्यादा वक्त ना ज़ाया करें। True. आप बताओ, आप तो फ्यूचर हो, मैम वेरी सिमिलर, अनफॉर्चुनेटली नो न्यू थोड़ा आंसर डिटेल में फॉर बताओ, ऐसे कॉपी पेस्ट ही चलेगा। बट मेरे लिए भी यही है, लाइक प्यार, इज्जत और एज अ कंट्री, जैसे as a- मैं एजुकेशन को मैं जी। चाहती हूँ कि और ज्यादा जोर दिया जाए आने जी। वाले टाइम में, उसके बाद सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे अगर जी। हमारा सही वैसा बात है, बिल्कुल आप सही हम्म। कह रहे हैं। एजुकेशन लिटरली, मतलब वहाँ पे मुझे लगता है कि जिन चीज़ों के बारे में हमें एक्चुअली एजुकेट होना चाहिए, अभी तक आई हैव नॉट सीन मैनी schools that actually are, you know, teaching those things like life skills, the real skills that we need to, you know, live our lives Nice. and grow up with. um, I think education is a huge place where we should be, like, you know, trying to change the way that we are approaching it, and it should not just be
1+2 basically. I mean Hmm. things like if I that. may add, I hope we're a better country for the vulnerable, the people that need us. I mean, I'm neither a child nor a woman, so I'm telling you straight away, neither am I LGBTQ. I just think the communities that are constantly persecuted, I wish we were a better country for them. Yeah. रानी जी मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स एन अमैलगमेशन ऑफ एवरीथिंग व्हाट दे सेड बट एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही कि हर गांव में हर छोटे से छोटे गांव में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए जी। पर सिर्फ वो चीज़ें बदल नहीं देगा मुझे लगता है क्योंकि बहुत एजुकेटेड लोग भी बहुत गलत काम कर रहे हैं क्योंकि बेसिक ह्यूमन इमोशन बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशन और बेसिक एटिकेट जो एजुकेशन से भी ऊपर आता है मुझे लगता है जो हम बचपन में मॉरल साइंस क्लासेस स्किप कर देते थे कई बार कि अरे ये क्या है ये तो चित्र है बस बुक में और ये मज़ा आता था पढ़ने में बट देयर वाज नथिंग बट आज बड़े होकर लगता है कभी मैं अपने अपने कज़न के अपने नेफ्यू के वार्डरोब में मैंने उस दिन देखा मॉरल साइंस बुक में जब जमशेदपुर गया था एंड आई वाज गोइंग थ्रू इट आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दोज चार्ट्स की यू नो बड़ों से इज्जत से बात करो सुबह यू नो डू योर ग्रैटिट्यूड प्रेयर आज सब वापस आ रहे हैं उसमें आज सब जर्नलिंग कर रहे हैं आज सब ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर रहे हैं दिस इज ऑल गोइंग बैक टू द मॉरल साइंस बुक व्हिच वी स्टडीड एज किड्स सो आई थिंक एजुकेशन से सबसे ज़्यादा मॉरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग एक बेसिक एटिकेट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस हो क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ जैसे बिहेव कर रहे हैं इस देश में तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा उस एजुकेशन का Which I think वो the बहुत ज़रूरी है people in defense have a lot of. Like I've Hmm. consistently said this in other interviews as well, that when you see a person from defense and especially Air Force in this case, they really know how to talk to women. The respect that they have, the manners that they have, it's up there. And I feel like that's where, I mean, I'm like, if those things are integrated within our normal civilian education system, it will really help the way that we देश approach. बदल जाएगा Well said. There Well you said. go. Well said. All right. Thank you so much and all the best. Operation Safed Saga releases only on Netflix on 7th 7th August. August. 7th August. 7th August. Perfect. Jai Hind. Jai Hind.